I would like you to turn your Bibles to Luke's Gospel, chapter 4. वचन में ध्यान देंगे लूका का सुसमाचार 4 अध्याय में जरा हम पढ़ेंगे And verses 14 till 19. उसके 14वां आयत से 19वें आयत तक हम पढ़ेंगे। Luke's Gospel, chapter 4, beginning with verse number 14. उसके 14वां आयत से हम पढ़ेंगे। It says, Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, और उसके बाद यीशु मसीह उसके खुदा के सामर्थ के साथ गलीली के शहर में आए and news of him went out through all the surrounding region. और उसके खबर जो है आसपास के सारे जगहों पर गई And he taught in the synagogues, being glorified by all. और सारे सिनगोग में उसके नाम की ऊंचाई हुई। Verse 16, So he came to Nazareth, where he had been brought up. और उसके बाद वो नाज़रेत शहर पे आया And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. और हर सप्ताह के समय उस सिनगोग में जाकर वो वचन में से पढ़ने लगा। Verse 17, And he was handed the book of the prophet Isaiah. और उसने यशायाह नबी के किताब से वचन पढ़ा। And when he had opened the book, he found the place where it was written. और उसके बाद वो वचन के पास गया जहां पर ऐसा लिखा गया था। Verse 18, उसके 18वां आयत में The लिखा Spirit गया, of the Lord is upon me, प्रभु की आत्मा मुझ पर है because he has anointed me to preach the gospel to the poor. उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझ पर अभिषेक किया है। He has sent me to heal the brokenhearted, इसलिए मुझे भेजा गया है कि जो दिल के टूटे हुए लोग हो to proclaim liberty to the captives, ताकि जो बंदी लोगों को जो है सुसमाचार सुना पाए and recovery of sight to the blind, और जो अंधे लोगों को जो है उसको चंगाई मिले to set at liberty those who are oppressed, और जो बंदे बनाए हुए लोग हैं वो उसके उनको जो है छुटकारा मिले to proclaim the acceptable year of the Lord. और जो खुदा का वो जो साल है सबके सामने सुसमाचार सुनाने के लिए। I pray God will bless the reading of His word and speak to us through this word. और ये वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। We have been thinking and preaching and sharing about liberation by the word of God. हम जो है परमेश्वर के वचन से सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। I want to talk to you for the next few minutes. और कुछ और समय के लिए मैं इस वचन से बोलूंगा। Jesus' ministry by the liberation of the word of God. यीशु मसीह की सेवकाई वचन के छुटकारा देने के समान। How did Jesus set people free by the word of God? किस तरह यीशु मसीह ने वचन के द्वारा लोगों को छुटकारा दिलवाया? He says here in verse number 18 और उसके 8वां आयत में इस प्रकार हम पढ़े हैं that he has come to set the captives free. वो इस कारण से संसार में आए जो बंदी लोग हैं उनको छुटकारा दिला पाए। Every person that is under bondage can be set free by the word of the living God. हर एक बंदा जो है पाप के बंधन में है उनको परमेश्वर खुदा छुटकारा दे सकता है। Let me say once again what I said a few weeks ago. और एक वचन में इस प्रकार पिछले हफ्ते में बताया The था whole world is actually in bondage because of a twisted, misquoted word. और सारा संसार जो है वचन को जो है गलत रीति से पढ़ाकर जो है लोगों को बंदी बनाया गया है। That is a word misquoted and twisted by Satan in the Garden of Eden. और ये ईदन के जो गार्डन में जो है शैतान ने वचन को है गलत रीति से उसने बताया। Everyone believed a lie and they're all under a spell of bondage now. और सारे लोगों ने उस झूठ को विश्वास किया और सारे लोग जो है बंदी बनाए गए। But we proclaim today the right and the true and the infallible word of God. लेकिन आज हम उस परमेश्वर के वचन को जो है सुसमाचार सुना रहे हैं, बता रहे हैं जो कभी गिर नहीं सकता। That will not put you in a bondage, that will set you free in your spirit, soul and body. वो वचन जो हमें जो आत्मा शरीर और जो है देह में हमें पूरी तरह छुटकारा दिला सकता है। Are you ready for the deliverance today? क्या उस छुटकारा के लिए आप तैयार हैं? Are you ready for the freedom in your spirit today? क्या वो आजादी के लिए क्या आप तैयार हैं जो आत्मा के द्वारा हमें मिल सकती है? Last Sunday evening in our healing service, पिछले हफ्ते जो है हीलिंग सर्विस में a young man in this church came forward for prayer. एक युवक जो है आगे आया प्रार्थना के लिए। And those who are here in the meeting, you saw what God has done for that man. और जो उस दिन मीटिंग में थे उन्होंने देखा जो खुदा ने उस बंदे के लिए किया। Though we are a small group in the healing meetings, जो कुछ ही लोग वहां पर मौजूद थे, God is doing mighty things. लेकिन खुदा बड़े-बड़े काम कर रहा है। This man fell to the ground और ये आदमी जो है जमीन में गिर गया and he was making weird noise.
और वो जो है अलग-अलग आवाज निकालने लगा। That's the man who is standing up I'm talking about. और ये भाई है, इनके बारे में बता रहा हूँ। And this man felt the power of God touching him. और ये खुदा का जो महान सामर्थ को छूते हुए उसने महसूस किया। And he stood up and said, "Why am I falling like this?" वो खड़ा होकर कहने लगा, मैं किस कारण से गिर रहा हूँ। Then we have to talk to him. We have to pray for him. उसके बाद हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ी। Then we found out there is a demonic bondage upon that man. लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि एक शैतान की जो है शक्ति उसके ऊपर बांध कर रखा है। And we spoke the word of God to him. और उसके बाद जो है वचन को उसको हमने समझाया। Brothers and sisters, prayed for him in the name of Jesus. और यीशु मसीह के भाइयों ने उसके लिए जो है खुदा के नाम से प्रार्थना की। We believe a process of healing has started in that man's life. हम विश्वास करते हैं कि छुटकारा देने की जो है प्रोसेस जो है उसके जो है जीवन में शुरू हुई है। Bible says, "Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven." और ये वचन सिखाता है कि जो संसार में जो बांधा गया वो सारी चीज जो है स्वर्ग में बांधा And whatsoever you जाएगा। shall loose on earth shall be loosened. और यहाँ पर जो छुटकारा दिला जाएगा वो सारे जो स्वर्ग में भी छुटकारा दिला I जाएगा। believe God can set some people free today. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों को खुदा जो है छुटकारा दिलाने वाला है। Whatever bondage, whatever oppression you are going through today, कोई भी बंधन में आप क्यों ना हो उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। there is healing in the word of God. यीशु मसीह के वचन के द्वारा चंगाई है। There is deliverance in the word of God. उसके वचन के द्वारा हमें छुटकारा है। It can set you free from inside out. वो हमें अंदर और बाहर से पूरी तरह आजादी दे सकती है। And I want to introduce to you who is his deliverer. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कौन है ये छुटकारा देने वाला व्यक्ति। It is not Benny Hinn. ये बनी नहीं है It is not Morris Cerullo. और मोरिस सरलो नहीं है, It is not Billy Graham. बिली ग्राहम नहीं है। This deliverer's name is Jesus of Nazareth. ये छुटकारा देने वाला आदमी का नाम है यीशु मसीह नासरी का। Hallelujah. A familiar name, isn't it? ये नाम हमने पहले सुना है। It's a strange name for some people, कुछ लोग ये अचंभे में सुन रहे हैं, but it's a very familiar name in hell, I tell you. लेकिन ये बहुत ही जाना माना नाम है शैतान के जो है अंधकार के जगह पर Because भी। when this name Jesus is mentioned, लेकिन जब ये यीशु मसीह का नाम पुकारा जाता है the foundations of hell is shaking, और जो है हेल का जो है नींव जो है हिलने लगती है and the bondage is about to be loosened. और ये बंधन है जो है टूटने लगती है। That's why I want to proclaim the name of Jesus इस today. कारण से यीशु मसीह का नाम का हम प्रचार करते हैं। Let me tell you 6 things about this deliverer. और इस छुटकारा देने वाले व्यक्ति के बारे में 6 बात आपको बताना It's चाहता हूँ। from the Gospel of Luke now. लूका का सुसमाचार से हम पढ़ रहे हैं Chapter 1 verse 35 tells us, और 1 के 35वें आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। this deliverer was born and conceived by the Holy Spirit. और उसके 35वें आयत में हम पढ़ते हैं कि ये छुटकारा देने वाला व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा से जन्मा गया। If he is conceived of the Holy Spirit, वो ऐसा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्मा, then you can imagine what kind of ministry he will have later on. तो आप समझ सकते हैं कैसे एक सेवकाई वो आगे वो बिता सकता है। God wants every one of us to be conceived by the Holy Spirit. खुदा चाहता है कि हम सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्मे। When the Holy Spirit enters your heart, your life, जब हम पवित्र आत्मा जो हमारे दिल और दिमाग में और जो है आत्मा में आती है the seed of heaven is sown inside of you. और जो स्वर्ग का वो बीज जो हमारे अंदर बोया जाता है That is the beginning of deliverance and freedom in your life. और वो है शुरुआत हमारे जीवन में छुटकारा दिलाने के लिए। Secondly, in chapter 3 of Luke verse 22, और उसके तीसरे अध्याय और 22वें आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, Jesus is not only born of the Holy Spirit, इतना ही नहीं वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, he is approved by the Heavenly Father. वो खुदा के द्वारा उस पे जो है चिन्ह लगाया गया Jesus था। was standing in the river Jordan to be baptized by John the Baptist. यीशु मसीह जो है यरदन नदी पे खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। When he came up out of the water, जब वो पानी से बाहर निकला there was a voice from heaven. और स्वर्ग से एक आवाज इस प्रकार सुनाई Said, दी, "This is my beloved Son, यही है मेरा प्रिय पुत्र, in whom I am well pleased." इसमें बहुत मैं खुश हूँ। And the Holy Spirit came and rested on him. और पवित्र आत्मा जो है उस पर आकर उतरा। Praise the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम की महिमा। The spirit of deliverance is the spirit of Jesus Christ. और छुटकारा दिलाने वाली जो आत्मा है वो यीशु मसीह की आत्मा है। Thirdly, about this deliverer, तीसरी बात ये छुटकारा दिलाने chapter व्यक्ति 4, का verse number 1. चौथे अध्याय उसके पहले आयत में Bible says Jesus was filled with the Holy Spirit. वचन सिखाता है फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He was born by the Spirit वो आत्मा से जन्मा, and he was approved by the Spirit. उसके बाद खुदा के द्वारा जो है उसको चिन्ह लगाया And गया। in filling of the Holy Spirit. उसके बाद पूरी तरह भरपूरी हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। It is getting stronger and deeper in Jesus. ये वचन के अंदर जो और वो ताकतवर और बहुत ही डीप जा रहा है। Brothers and sisters, your oppression and your problems will go when you
you're conceived by the Holy Spirit. जब आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो है जकड़े हुए बातें हैं, ये सारी टूट जाएंगी जब यीशु मसीह I mean that the Holy Spirit dwells inside of you. जब परमेश्वर की आत्मा, खुदा की आत्मा आपके अंदर निवास And करता you're है, sealed by the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चिन्ह लगाया जाता Then है, you go to the third level, you're infilled by the Holy Spirit. तीसरी बात जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूरी, Look at the fourth one. और चौथी बात Again in chapter 4, verse number 1. चौथे अध्याय के पहले आत्म इस प्रकार Bible हम पढ़ते says हैं, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. और वचन सिखाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जो है निर्जन प्रदेश में ले जाया गया। That means he's getting closer relationship with the Holy Spirit. इसका मतलब है कि वो और ज्यादा करीब आ रहा है पवित्र आत्मा से, He's walking in communion with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ वो साथ ही चल रहा है। Oh, deliverance is about to come today. छुटकारा बहुत निकट है। When you decide to walk in step with the Holy Spirit, जब आपके मन में ये आता है कि पवित्र आत्मा के साथ कदम बर कदम चले, you don't need a Superman to lay hand on you, कोई सुपरमैन की जरूरत नहीं कि आपके ऊपर हाथ रखे, because the deliverer is inside of you. इस कारण से कि छुटकारा दिलाने वाला खुदा जो आपके अंदर है, Because you are filled with the Holy Spirit. इस कारण से क्योंकि पवित्र आत्मा से आप भरपूरी में हैं And you're led by the Spirit of और God. आत्मा से अगुवाई में आप चलते हैं। The fifth one, पांचवी बात, chapter 4, verse number 14. 4 के 14वें आयत में इस प्रकार हम पढ़ते It हैं, says, we read that today, Jesus returned in the power of the Spirit of God. और पवित्र आत्मा की जो अगुवाई के साथ वो पीछे जो है गलीली शहर में आया, Now he is going another step from the walking in the Spirit. Now he is empowered by the Spirit of God. और इतना ही नहीं सी आत्मा के साथ चलना, लेकिन आत्मा की भरपूरी में आगे चलना। And I see Christian friends say, oh, Pastor Joe, I'm so tired and weak and I'm oppressed and depressed and whatever. और कई बार जो मसीही लोग इस प्रकार बोलते हैं, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफें हैं। I wonder where the Holy Spirit has taken residence in your heart and life. तो मैं सोचता हूँ कैसा खुदा का जो आत्मा आपके अंदर कहाँ पर निवास करता है, Empowered by the Spirit of God. लेकिन आत्मा से जो है शक्ति धारण कर आगे There जाना। is one more I have to say. एक और बात आपको बताना Chapter चाहता 4, verse number 18, we read today. हूँ। 4 के 18वां आयत इस प्रकार हम पढ़े थे, Jesus begins a reading of the scripture like this. और वचन को पढ़ने के समान पढ़ते हुए इस He प्रकार says, the कहा, Spirit of the Lord is upon me. और परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, And because he has anointed me. इस कारण से कि उसने मुझे अभिषेक किया है। That is the sixth level of the Holy Spirit upon you. वो छठवीं लेवल है परमेश्वर की आत्मा आप पर काम करने का। Not just born of the Spirit, सिर्फ आत्मा से जन्मा नहीं, not by indwelt by the Spirit, सिर्फ आत्मा के अंदर रहने से नहीं, not is just the infilling of the Holy Spirit, सिर्फ आत्मा की भरपूरी से नहीं, not just by walking in direction of the Holy Spirit, सिर्फ आत्मा की अगुवाई में चलने की नहीं, not just being empowered by the Spirit from time to आत्मा का time. सामर्थ आप पर आने के इतना ही नहीं, You are flooded with the Holy Spirit. लेकिन आप भरा हुआ है पूरी तरह आत्मा से। I looked at the word anointing the other day in a secular dictionary, और डिक्शनरी में पढ़ रहा था कि अभिषेक का सही अर्थ क्या है, and it says spread all over. और जो है उसका अर्थ ये है कि पूरी तरह फैला जाना। I like that term for anointing. ये आत्मा की जो अभिषेक में बहुत अच्छा जो है पद है, Another meaning of anointing is to grease it, और जो है अलग दूसरा एक भाषा है उसका अर्थ ये है पूरी तरह ग्रीस to करना, oil it, to rub with oil, जो तेल लगाते हैं उस प्रकार पूरी तरह जो है घसना, to bless and to consecrate. जो है आशीष देना और ब्लेस करना। That's what Jesus was. वही यीशु मसीह था, He was flooded with Holy Spirit grease on him. और पूरी तरह जो है आत्मा की भरपूरी पर उस पर आकर जो है ग्रीस तरह उसके ऊपर लगाया गया When था। such an anointed man walks into any place, जब ऐसा एक अभिषेक से भरा हुआ एक व्यक्ति कोई भी जगह पर जब जाता है, even the chief of demons cannot stand against the power of Jesus. और जो है शैतान की आत्मा की जो है Hallelujah. आदमी भी उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। Even the strongest chains on you will have to be shaken. सबसे ताकतवर जो है जंजीरें भी टूटनी पड़ेगी। Even the strongest stronghold in your life, the bad habits or whatever, witchcraft or curse on you, will have to begin to shake. कोई शक्तिशाली जो है ताकत आपके ऊपर क्यों ना हो, क्यों भी जादू टोना या ऐसी कोई भी बात है वो टूटने लगेगी। Because the anointed one has come. इस कारण से क्योंकि अभिषेक जिस पर हुआ है वो आया। Can we say, oh, praise the Lord for क्या हम that? खुदा की महिमा करें? As I stand here today, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, I believe God has anointed each and every one of मैं us. विश्वास करता हूँ कि हम सभी को परमेश्वर ने आशीष किया, अभिषेक किया, Don't put your head and your shoulder on every man or woman of God. और हर एक जो है आपकी कंधा झुकाए मत रखो, Because some of them may be transferring some demonic spirits on you. क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी दुष्ट आत्माओं किसी के ऊपर दे My रहे। wife is very particular in that.
और उनकी जो है वाइफ जो है बहुत ही She सावधानी says, से बात I don't allow certain people to lay hand on me. मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ लोग जो है मेरे ऊपर हाथ रखें Because some people will be transferring the wrong spirit into me. कुछ लोग जो है इसकी गलत आत्मा मुझ पर ट्रांसफर कर देंगे So it is very serious, brothers and sisters. इसके लिए बहुत गंभीर बात है मेरे भाई और बहनों But you can always bend your head, bend your knee before this anointed one. लेकिन हर एक समय आप इस अभिषेक से भरा हुआ यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों झुका सकते हैं He comes to set the captives free. इस कारण से कि वो बंधन में जो पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आया है I want to focus on three things as I quickly go through this message. और ये जो है पैगाम में से 3 बातों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा Now I have given you the qualification, the credential of the deliverer. मैं छुटकारा दिलाने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ खास बातों को अपने Let's बताया look at the approach of this deliverer on 3 different situations. और किस तरह ये छुटकारा दिलाने वाला व्यक्ति 3 अलग-अलग संदर्भ में किस प्रकार आगे बढ़ता He है says, I came to proclaim liberty by the word. यहाँ पर लिखा गया है कि मैं इस कारण से आया कि वचन के द्वारा आपको छुटकारा दिला पाऊं The first one is found in Luke's Gospel, chapter 4 itself. और चलते ही अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं As you look at verses 31 to 37, उसके 31 से लेके 37 तक हम पढ़ते हैं Jesus, being full of the Holy Spirit, walking into a synagogue, a Jewish church. और जो एक जूइश चर्च है सिनेगॉग में आत्मा की भरपूरी के साथ वो आगे निकल He रहा है was in the city of Capernaum. वो कफरनहूम के उस शहर में था While he went in there, वहां पर जाने के बाद as soon as he went in there, it seems there was a person cried out. वहां पर अंदर जाने पर ही एक आदमी जो है चिल्लाकर कहने लगा He cried with a loud voice. वो चिल्लाकर ऊंची आवाज में कहने लगा Well, the Jewish church is a respectable place. और ये यहूदियों का जो चर्च है बहुत ही जाना माना आदर के साथ वाला They were चर्च है not expecting any unnecessary noise in the church. वो नहीं चाहते हैं कि कलीसिया में उनके कलीसिया में कोई जो है ऊंची But ऊंची this आवाज में कोई बोले man who was sitting in that Jewish church all these years, वो यहूदी चर्च में जो बैठा हुआ ये आदमी जो कई सालों से बैठा था when he saw the anointed one walking into that church, जब उसने देखा कि ये अभिषेक से भरा हुआ आदमी जो इस कलीसिया में अंदर आ रहा है he began to break loose and cry. वो आगे चिल्लाकर बोलने लगा You know what he cried out? क्या उसने कहा That's in verse number 34. और 34वें आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं He said, "Let us alone. हमें छोड़ दे What have we to do with you, Jesus of Nazareth? और मुझे और आपसे क्या लेना देना Did you come to destroy us?" क्या हमें नाश करने के लिए तू आया है Look at what the demon says. I know who you are. और दुष्ट आत्मा इस प्रकार के है मैं जानता हूं कि तुम The कौन हो Holy One of God. तू परमेश्वर का पवित्र जन है Many Christians do not know who Jesus is. कई लोग नहीं जानते मसीह लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन But है the devil knows very well who Jesus is. शैतान अच्छी तरह जानता है कि यीशु मसीह कौन है He said, "You are the Holy One of God." और वो कहता है कि तू ही पवित्र परमेश्वर का है See, the Holy Spirit presence come in the church. Some people don't realize it. कई बार जो परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आती है आप महसूस नहीं कर And some पाते people will be still sleeping or dreaming. कुछ लोग जो है जो कुछ और बात सोच रहे हैं या When सो रहे हैं Christ comes to heal you, you just don't even realize He is here. जब यीशु मसीह आपके सामने आपके पास आकर छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं आप जानते भी नहीं हो आपके I करीब tell you, including myself, shame on us Christians if we don't recognize the presence of the Lord in our church. ये शर्म की बात है कई बार यीशु मसीह की जो उपस्थिति हम नहीं महसूस कर पाते Because the demons sitting in the corners of our church, they recognize the presence of God in this church. जो शैतान जो कई सारे जगहों पर कलीसिया में बैठा हुआ है वो जानता है कि यीशु मसीह कौन है लेकिन हम नहीं They पहचानते cried out and said, "Why have you come to destroy us?" वो कहने लगा कि क्यों इस कारण से यहाँ पर आया कि हमें नाश करने के लिए Now this man was bound by demons for quite a few years, it seems. और ये आदमी कई सारे सालों में इस बंधन में पड़ा हुआ था I am not going to get into the details of how demons can enter into your life. मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा किस तरह एक जो है शैतान की आत्मा आपके अंदर आ सकती But है this man was maintaining the demonic presence in his heart for a long time. लेकिन ये आदमी शैतान की आत्मा अपने अंदर बनाए रखा था कई सालों से If you enjoy demonic things and if you entertain demonic things, Satan will be comfortable in your heart and your spirit. अगर आप बुरी चीजों में गरीब बातों पे या गलत आदतों में अपने आप का समय बिताते हैं तो शैतान आपके अंदर जरूर But आएगा let's see how Jesus is dealing with this guy. लेकिन हम देखेंगे किस तरह यीशु मसीह ने इस आदमी से जो है डील किया Look at verse number 35. उसके 35वें आयत में इस प्रकार हम But पढ़ते हैं Jesus rebuked him, उसके बाद जो यीशु मसीह चिल्लाकर फटकार कर कहा saying, "Be quiet डांट कर उसने इस प्रकार कहा कि तू चुप बैठो and come out of him." उसके अंदर से बाहर निकल आओ Oh, powerful words, isn't it? शक्तिशाली साउंड के साथ वाले वचन I
probably some of us need to speak that word to ourselves today. मैं सोचता हूँ कि कई सारे लोग हम जो है अपने आप से ये बात कहनी है, That bondage which keeps coming back and forth again in our lives. वो बंदगी और सारी बंधन की बातें जो अंदर है वो निकलना That चाहिए। spirit of depression keep on keeping you depressed all the time. आपको निराशा में डालने वाली वो आत्मा आपको अंदर ही अंदर घुटा रही That है। spirit of infirmity which keeps on being a sick person all the वो time. हर समय जो वो आत्मा जो आपको बीमार करती है, That spirit of gossip that keep you gossiping all the वो time. हर समय आपसे जो है नहीं बात करनी, ऐसी बातों में आप समय बिताते हैं, वो That आत्मा। spirit of division in the family, causing division between husbands and wives and others in the family. वो फूट दिलाने वाली करने वाली जो आत्मा जो परिवारों के बीच में फूट डालती है। Today, let's fight to shake the foundations of these demonic spirits by proclaiming the name of Jesus क्यों ना Christ. हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन को कहकर ये शैतान की आत्मा पर फटकारे। You have to say, be quiet. आपको कहना है कि तुम चुप रहो। When the pain is coming back to you and telling you, you're going to die with this pain, with this sickness. जब आपको वो पीड़ा वापस आके आकर आपको कह रहा है कि ये पीड़ा से आप मर जाएंगे, When you think or you feel, you heard that the cancerous cell is coming back to you. जब आपको इस तरह लगता है कि वो कैंसर के सेल्स जो आपके अंदर फिर वापस आ You रहा have है, to speak to that cancerous cell, be quiet. आपको उस कैंसर के सेल से कहना है कि तू चुप बैठो। Like Jesus said, speak to that problem, come out of me. और जिस तरह यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि बाहर निकलो, You have the deliverer by the power of the Holy Spirit inside of you. इसके अंदर क्योंकि आपके अंदर जो छुटकारा दिलाने वाला खुदा जो आपके अंदर है, And God has given you the right and the authority, as I said last week, to evict these guys from your life. इस कारण से आपको जो पूरा अधिकार खुदा ने दिया है कि इसको दुष्ट आत्मा को अंदर से निकालने के लिए। Jesus commanded to the man and to the problem he had. और जो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर जो है उस आत्मा को डांट कर कहा, God's word will not come back void. और परमेश्वर या खुदा का वचन है खाली वापस नहीं आएगा। If you believe God's word and act upon it, अगर आप परमेश्वर के खुदा के वचन को भरोसा करते हैं, उसके अनुसार it चलते will हैं, come back with great results. और वो वापस आएगा बहुत सारे रिजल्ट के साथ, आशीष के साथ। Jesus' command, let's see what happened afterwards. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? And when the demon had thrown him in their midst, और दूसरा एक आत्मा जो है उस आदमी को उनके बीच में डाल दिया, it came out of him and did not hurt him. और वो जो है दुष्ट आत्मा उस आदमी से बाहर निकला, उसको कोई जो है तकलीफ नहीं पहुंचाया। That's what real deliverance is all about. यही है परमेश्वर के द्वारा छुटकारा। Nowadays, people go to some healing meetings, they are pushed down and thrown down on the floor. हम देखते हैं कि आजकल के हीलिंग मीटिंग में कई सारे लोगों को धक्का मारकर नीचे गिराया जाता है। And I heard of a lady, she came back with a broken neck. और एक औरत के बारे में मुझे पता चला जो है गला की जो हड्डी है टूटकर वापस आई। These are the kind of gimmicks these so-called evangelists show in the meeting. और ये सारी जो बातें जो है कई सारी मीटिंग में ऐसा होती है, But the anointed will not do such kind of thing. लेकिन जो अभिषेक से भरा हुआ यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। He will not break your neck. वो आपके गले को नहीं तोड़ेगा, He will not push you over. वो आपको धक्का मारकर नहीं गिराएगा। But even if he pushes you over by the power of the Spirit, वो परमेश्वर के खुदा की आत्मा से अगर आपको धक्का मार भी देता you है, will not get hurt. आपको Hallelujah. नहीं लगेगा, दुखेगा नहीं। Though this man was demon possessed, ये आदमी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, Jesus had come out of him. और यीशु ने डांट कर कहा कि बाहर निकलो। He shook him violently. He came out of him. वो उसे हिला हिलाकर जो है बाहर निकला, The man fell down. वो आदमी नीचे गिर गया, But there was no need of catching this guy, it seems, और इस आदमी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, because he was not hurt at all. उसको कुछ लगा नहीं था, कोई तकलीफ नहीं हुई थी। I hope you're getting the message what I'm talking about here. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको वो सही पैगाम मिल रहा है। Oh, many people show gimmicks on the television, gimmicks in the church. और कलीसिया में कई सारे टेलीविजन में यही सारी बातें होती हैं। We don't need to do that. ये सारी बातें हमें करने की Just जरूरत नहीं touch है। a person in Jesus' name. यीशु मसीह से आप किसी व्यक्ति को अगर आप छूते हो, Don't rock the person like some people used to do. आप उसे हिला हिला कर मत गिराओ। Don't just do like that like some people used to do. कुछ लोग जिस प्रकार हाथ हिला हिला के करते हैं ऐसा मत That करो। is not in the Bible. ये वचन में नहीं सिखाया गया It's है। not from the Holy Spirit. ये उसके परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। Bible says lay hand upon the sick वचन सिखाता है कि जो बीमार लोगों को जो है लोगों को हाथ रखो and they shall recover. और वो है उनको छुटकारा मिलेगा, You don't have to rock them or push them at all. और उनको जो है गिराने की जरूरत नहीं है। You just pray for them by laying hands on them. सिर्फ उन पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करो। So command is the number one. सबसे पहले बात जो है जो पुकार कर डांट कर कहो। Let's see another situation. अगली एक बात को हम देखेंगे How Jesus dealt. किस तरह यीशु मसीह ने उस काम That's को in अंजाम दिया। chapter 5 of 5वें अध्याय में Luke's Gospel, chapter 5, 1 to 11. I'm not going to read now.
और 1 से 11 के बीच में इस प्रकार हम देखते हैं। It speaks about Jesus stepping into an empty boat. और यीशु मसीह एक नाव में, खाली नाव में चढ़ते हुए हम देखते It seems the fishermen, the owners of the boat, they are pressed down with frustration. हैं। और जो है बोट के ओनर जो है वो सारे लोग जो है तकलीफ में आ गए थे कि मछली नहीं आ रही थी। After a hard night's fishing, they could not catch any fish at all. रात भर उन्होंने मेहनत की लेकिन उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी। Unemployment is a big problem there. और जो है रोजगार नहीं होना ये एक बड़ी तकलीफ है यहाँ पर। They were frustrated. They said, "Well, look, we tried all night, but we couldn't catch any fish at all." वो बहुत ही निराश थे कि रात भर उन्होंने मेहनत की लेकिन उन्होंने मछली नहीं पकड़ पाए। You know, when you try hard, when you try your level best, and you are frustrated, कई बार हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। that's when the deliverer walks in many times. वो वही समय है जो है छुटकारा दिलाने वाला खुदा जो हमारे बीच You में आता है। tried your best and you are a failure. आपने आप से जो हो सकता है आपने किया है और आप जो हार चुके हैं। But I tell you, the deliverer is about to step into your emptiness. लेकिन मैं कहता हूँ कि उस खालीपन में यीशु मसीह छुटकारा दिलाने वाला आदमी आता आ रहा है। That messy life of yours, Jesus is going to step in today. वो टूटे हुए जीवन में यीशु मसीह उतर कर आने वाला है। That broken family of yours, Jesus will step into that वो today. परिवार जो टूटे हुए उसके बीच में यीशु मसीह आने वाला है। That debt-infected family, Jesus is going to enter into your life today. वो कर्जा से भरा हुआ जो परिवार है उसके बीच में यीशु मसीह आने वाला है। That husband, that wife, that family which is a failure, Jesus will step into your family today. वो पति और पत्नी, वो परिवार जो हार चुका है, हर तरह जो गिर चुका है, वहां पर यीशु मसीह आ रहा है। But when Jesus steps into your life, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है, He will have a word for you. उसके लिए आपके लिए एक वचन वो देगा। So let's see what happened here. यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ। By the word, He's about to fill that empty boat. और उसके वचन के द्वारा उस खाली नाव को वो भरने वाला है। Luke 5, verse number 4. उसके चलते आज इस प्रकार हम पढ़ते हैं। When he had stopped seeking, he said to Simon, उसके बाद उसने सिमोन से इस प्रकार कहा, "Launch out into the deep और जो गहरी जगह पर जो है अपने जाल को डालो and let down your nets for a catch." और जो है मछली पकड़ने के लिए जो है जाल को फेंक दो। Look at verse number 5, please. और उसके 5वां आयत इस प्रकार पढ़ते हैं। Simon answered and said to him, शिमोन ने उसे उत्तर दिया, "Master, हे स्वामी, we have toiled all night and caught nothing. हमने सारी रात मेहनत की है और हमने कुछ नहीं पकड़ा। Nevertheless, लेकिन at your word I will let down the net." लेकिन तेरे कहने पर ये जाल मैं फेंकूंगा। I like that determination. और वो जो कहता है मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। We know we didn't catch anything, मैं जानता हूँ कि हमने कुछ नहीं पकड़ा and they said we know it is not the right time to catch fish, और हम भी ये भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए अच्छा समय नहीं है and we know nothing is going to happen. और हम ये भी जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। Nevertheless, they said, लेकिन I like that term. Even if things are against us, हो सकता है कि बातें हमारे खिलाफ हो, even though circumstances are different, ये सारे संदर्भ या जो है परिस्थितियां अलग हो, though in the natural nothing is going to happen, आप स्वाभाविक रूप में सोचकर ये पूरा नहीं हो सकता है। Simon Peter said, "Yet I'm going to believe. लेकिन शिमोन कहता है कि मैं फिर भी विश्वास रखूंगा, I'm going to believe what you said." मैं उस पर विश्वास रखूंगा जो तूने कहा है। How many are believers here today? कितने लोग यहाँ पर हैं जो विश्वास करते हैं? If you just believe His word, hallelujah, अगर सिर्फ आप उसके वचन को विश्वास करते हैं, you conceive that word into your spirit. आप जो है वचन को अपने अंदर आप स्वीकार करते हैं, Let the word dwell inside of you. वो वचन आपके अंदर रहने के लिए आप सामर्थ जमा कर दो। Let the word take root into your spirits. वो जो है वचन आपके आत्मा की गहराइयों में जाने Let दो। the word become part of your life, your bloodstream. वो आत्मा जो है वचन जो है आपके शरीर का एक भाग बन जाए। That's when the word of God says like this. वहां पर यीशु मसीह का वचन इस प्रकार So है, shall my word be. वहां पर ऐसा ही मेरा वचन It होगा। shall not come back to me empty. वो वचन वापस कभी खाली नहीं It आएगा। will accomplish what I purposed it for. इस कारण से क्योंकि मेरे वचन भेजा है तो पूरा कर ही वापस आएगा। So Simon said, those situations are difficult and hard. और शिमोन कहने लगा कि ये सारी परिस्थितियां बहुत मुश्किल है, I'm going to trust your word. लेकिन तेरे वचन पर मैं भरोसा रखूंगा। Are there any trusters here today? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर पर खुदा पर विश्वास करता है? You know, in the natural, you're not going to get a job easily. स्वाभाविक रीत में आप सोचते हैं कि मुझे काम काज मिलना बहुत मुश्किल है। You know, in the natural, your sickness is not going to be healed easily. स्वाभाविक रीत में आप सोचते हैं कि मेरी बीमारी जाना बहुत मुश्किल है। You know, in the natural, the runaway child is not going to come back. स्वाभाविक रीत में आप सोचते हैं कि मेरा बेटा जो
जो मुझसे छोड़कर गया है वापस नहीं आएगा। Oh, in the natural, that boy or girl, that family who is in a mess in their lives, आप सोचते हैं कि स्वाभाविक रूप में वो परिवार जो टूटा हुआ they है are not going to be restored, you think. वो कभी वापस नहीं आएगा। But God's word has good news for you today. लेकिन वचन बहुत ही एक अच्छा खबर आपको सुना रहा है। Stay on in the word of God. वचन में बने रहो। God never tells a lie. यीशु मसीह खुदा कभी झूठ नहीं कहता। What he said is true all the time. वो हर एक समय जो कहता है वो पूरा होता है। This word is settled forever in eternity. ये स्वर्ग का जो वचन है ये हर समय के लिए वही है। We cannot add to this word or take out from this word. इस वचन में हम कोई और जो है ऐड नहीं कर पाएंगे या कोई निकाल नहीं पाएंगे कोई वचन को। When God says let there be light, then light will be there. वचन जब कहता है कि यहाँ पर जो है रोशनी आए, ज्योति आए तो आ जाती है। When God says let there be healing, healing will be there. जब वचन कहता है कि यहाँ पर छुटकारा है, चंगाई है, तो वहाँ पर छुटकारा है। When God says that young man, young girl, young family will be restored, it will be restored. वचन कहता है कि वो भाई या बहन ये जो परिवार जो है रिस्टोर किया जाएगा, सही किया When जाएगा। God says your debt is cancelled, it will be जब cancelled. वचन कहता है कि आपकी जो कर्ज की सारी बातें हैं खत्म हो चुकी I हैं। believe the report of the Lord. Hallelujah. वचन जो कहता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ। 10 spies, they could come back and say all negative things about the land they spied out. और 10 लोग जो वापस आकर इस प्रकार के हैं कि वहां पर जो है जगह सही नहीं है। But Joshua and Caleb said, लेकिन जोशुआ और कैलेब सिर्फ 2 लोगों ने God covenanted with us already. और जो यीशु मसीह ने हमसे एक वाचा फिर एक बात बांधा है We are well able to take over that land. और हमें इतना सामर्थ है कि वो जगह को हम हथिया सकते हैं। My brother, my sister, if you are praying over something which is so hard and difficult in your life, भाइयों और बहनों, अगर आप कोई ऐसे विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपकी जीवन बहुत मुश्किल if you दिखता है, don't see any breakthrough or answer for that particular problem you are praying for now, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें आप उत्तर नहीं देख पा रहे हैं, God's word for you today is this. लेकिन वचन आपको यही कह रहा है Launch out into the deep. और आगे और गहराई में अपने जाल को फेंको। In other words, obey His word. सिर्फ वचन के इस पर भरोसा करो, Regardless of what, आपकी परिस्थितियों को मत देखो, whether it is night or day, वो दिन हो या रात हो, whether the net is broken or good one, आपका जाल फटा हुआ या नहीं, whether your boat is empty or full, आपका नाव खाली हो या भरा हुआ हो, whether you are healed or not, आप चंगाई पाए हुए नहीं पाए whether you हुए, got a job or not, आपके पास नौकरी हो या ना हो, whether you are blessed or not, आपको आशीष मिली या ना मिली, obey His word. सिर्फ उसके वचन पर भरोसा Hold करो, on to His word. उसके वचन को His स्वीकार करो। word will not come back to you empty. उसका वचन कभी वापस खाली नहीं It आएगा। will accomplish what He purposed it for. ये कार्य में भेजा गया वचन पूरा कर ही वापस आएगा। I praise the name of the Lord today. खुदा के नाम की मैं महिमा करता हूँ। That empty boat will never be empty. वो खाली नाव कभी खाली नहीं रहेगा। At last Simon Peter obeyed the word. उसके बाद सिमोन पतरस ने इस प्रकार कहा They began to pull the net back. और वो जाल फिर खींचने लगा। It was a different story now. वो पूरी कहानी बदल गई। It was not the ordinary. वो साधारण नहीं थी। It was not the usual or the natural. वो हर बार जो होने वाली बात नहीं It थी। was beyond their expectation. उन्होंने जो सोचा समझा उससे ज्यादा। Like somebody said, it was a net-breaking, boat-sinking blessing upon his family. वो जो है नाव को जो है डुबाने वाली, जो जाल को फाड़ने वाली एक आशीष वहां पर दिखी। God can give you the net-breaking, boat-sinking blessings upon your life. खुदा जो है आपके जीवन में ऐसे आशीष दे सकता है जो जाल फाड़ सके और जो है नाव को डुबा When सके। you're willing to obey God no matter what, जब आप खुदा के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हो, your husband may reject you, आपके पति आपको छोड़कर चला your जाए, family may isolate you, दूसरे परिवार आपको छोड़कर चला your जाए, children may not give you Father's Day card, और जो है बच्चे आपको फादर्स डे कार्ड न दे, but He never leave you, never forsake you. लेकिन वो है हमारा खुदा जो हमें कभी नहीं अकेला छोड़ेगा। His word is so true. उसका वचन सच्चा है। Then I say one more, then I close. एक और आयत में कहूंगा In the same chapter 5, और सिर्फ 5वें अध्याय में ऐसा लिखा गया verses 12 to 16, 12 से 16 में लिखा गया we see another bound and oppressed person. दूसरा एक व्यक्ति जो बंधन में पड़ा हुआ है उसे हम देखते And हैं he was actually inflicted by a spirit of uncleanness. और जो है जो अपाक करने वाली जो आत्मा अशुद्ध करने वाली आत्मा से वो जकड़ा It हुआ was था not just a spirit inside of him, it manifested outside in the form of leprosy. और वो आत्मा सिर्फ अंदर नहीं लेकिन बाहर भी दिखने लगी कोड़े के You समान। know, when you are a leper, I've never been a leper, so I don't know. When you are a leper, you're conditioned by that thing. जब आप कोड़े से भरे हुए एक आदमी होते हैं तो आपका शरीर का जो है सारी बातें बदल They're जाती हैं। always speaking to you, I am unclean, I am unclean. I हर am समय unclean. आप
अपने आप से कहते हैं कि मैं अशुद्ध आदमी हूँ। In those days, in Jesus' days, और यीशु मसीह के उस समय पर when a leper, if he wants to pass by somewhere, जब कोड़े से भरा हुआ एक व्यक्ति एक जगह से अगर जाना पड़ता है, say for example, he is coming to Southport Broadway, आप सोचो कि यह साउथ ब्रॉडवे में आ रहा and है, the leper will have to say from miles beforehand, तो बहुत ही दूर से वो कोड़े से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा कहना पड़ेगा he उसे, doesn't have to say his name, उसे अपने नाम कहने की जरूरत नहीं he है, will say like this, वो ऐसा कहेगा, I'm unclean, I'm unclean, I'm unclean. मैं अशुद्ध आदमी हूँ, मैं अशुद्ध आदमी हूँ। In other words, he's saying, move, move, make way, because I'm coming. वो इस प्रकार कह रहा है कि आप रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूँ। No clean person can stand near to this person. कोई शुद्ध आदमी अशुद्ध आदमी के सामने नहीं खड़ा हो It सकता was है। uncleanness, it was rejected in the society. वो जो समाज में उसको छोड़ दिया गया था, वो अशुद्ध आदमी था। As you look at verse number 12 of chapter 5, और अब 12वें आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं। it says, behold, a man who was full of leprosy saw Jesus. और वहां पर एक आदमी जो पूरी तरह जो है कोड़े से भरा हुआ था। You know, the writer of the Gospel of Luke, he was a doctor, by the way. क्या आप जानते हैं कि लूका का सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति एक जो है डॉक्टर था। So you will see the doctor's language there. इस कारण से वो डॉक्टर की जो है भाषा वो बोलता है। When Matthew says there was a leper came, जब जो है मत्ती कहता है, मत्ती के सुसमाचार में कि कोड़ा हुआ बच्चा आया Luke है, will go to the extent say he was full of leprosy. लेकिन लूका का सुसमाचार में इस प्रकार वो लिखा है कि कोड़ा से पूरा हुआ भरा हुआ आदमी And था। this leprosy man with the spirit of leprosy came to see Jesus. और ये कोड़े से भरा हुआ आदमी यीशु मसीह से मिलने आया। And he fell on his face and implored him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. वहां पर गिरकर वो रोने लगा, बिलखने लगा, कहा कि मुझे शुद्ध कर दो खुदा। Verse 13, then he put out his hand and touched him, saying, उसने हाथ को बढ़ाकर इस प्रकार उसने कहा, I am willing, और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ be cleansed. आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओ। Let me say that one more time. फिर एक बार मैं कहूँगा, There is any person feeling guilty with uncleanness in your life today? और कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो सोचता है कि आपकी जिंदगी पूरी अशुद्ध है, May God's word sanctify you today. वचन आपको पूरी तरह शुद्ध करे। As you receive the word of God in your hearts, जब यीशु मसीह का वो वचन आपके अंदर वो स्वीकार let किया, that filth be flushed out from you today. आपके अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकल Let आएगी। that uncleanness which you're hoarding in your heart and your mind, आपकी अशुद्धता की बातें जो आपके दिल और दिमाग में है, that bad language which comes out through your mouth all the time, और हर एक बार जो आपके मुंह से वो गलत बातें बुरी बातें आती the हैं, pornographic literature you're watching all the time, और गलत बातें रीड करना या देखना वो बातें, the wrong kind of friendship and relationship some of our young people are into nowadays. आप गलत दोस्तों के बीच में जाते हैं वो बातें, These spirits will have to go because they are unclean. और ये सारी आत्मा आपके अंदर से बाहर निकलनी पड़ेगी क्योंकि वो अशुद्ध है। God cannot bless an unclean vessel. खुदा जो है एक अशुद्ध वस्त्र को कभी जो है बर्तन को आशीष नहीं दे सकता है। He will use a small vessel. वो एक छोटा सा बर्तन को उपयोग कर He सकता will है, use a big vessel. वो बड़ा बर्तन को उपयोग कर सकता है, He can even use a medium-sized vessel. वो साधारण साइज का एक वस्त्र को भी उपयोग कर सकता है, At worst, he can use even a broken vessel. वो टूटा हुआ बर्तन को भी उपयोग कर सकता है। But brothers and sisters, God will never use an unclean vessel. लेकिन खुदा के भाइयों और बहनों कभी अशुद्ध बर्तन को उपयोग नहीं करेगा। God's word is speaking to somebody here today. यहाँ पर कुछ लोगों से खुदा की वचन बात कर रहा You है। have a habit of alcoholism in your life. आपको जो है मद पीना या शराब पीने की आदत है। One brother came and told me a few days ago, Pastor, I used to drink a little bit. और एक भाई मुझसे आकर इस प्रकार कहना कि मैं थोड़ा बहुत पीने लगा, 2 months now, I completely stopped. और 2 महीने हो चुके हैं मैं पूरी तरह रोक दिया I उसे। said, good on you, man. Keep it up. God bless मैंने you. कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहो। And I know that there are others indulging in sinful things in this church. मैं देखता हूँ कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो गलत बातों में जाते हैं। If you are going in a wrong relationship, brothers and sisters, अगर आप गलत जो है रिलेशनशिप या रीतियों में जाते हैं, without the consultation of the pastoral team, your own parents and other mature brothers and sisters, और आपके भाई बहनों से पूछे बिना या माता पिता से पूछे बिना आप गलत दिशा में some जाते of you हैं। are getting into serious trouble, by the way. कुछ लोग जो है बहुत ही गलत दिशा में जा रहे, गलत दिशा में जा रहे How हैं। many murders we hear about girls and boys out there? कितने भाई बहनों या आदमियों की जो मृत्यु या खुदा हत्या के बारे में हम पढ़ते Now, हैं। Sister Carol said, I'm a father
father of this church. I am speaking with father-in-law today. अब पिता के समान, पिता के प्रेम से मैं आपसे कह रहा I हूँ, don't want any of our young people or brothers and sisters to perish and going in the wrong way. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे कलीसिया से कोई भाई कोई गलत दिशा में जाकर नाश हो I जाए। say with the love to each one of our young people, प्रेम, खुदा के प्रेम से हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहूंगा, control your mobile phone, आपके मोबाइल फोन को कंट्रोल करो control your Facebook and your Twitter. और फेसबुक और ट्विटर में आप ज्यादा इन्वॉल्व ना हो The जाओ। wrong message and his message is leading you outside of your boundary. और ये सारी बातें आपकी सीमाओं के खिलाफ हो Put a रहे हो। stop to it immediately. ये सारी बातें आपको रोकना पड़ेगा। Say enough is enough. I am a child of God. आपको कहना पड़ेगा कि ये खत्म हो चुका है, इसके आगे No uncleanness can come into this mind. और ये कोई अशुद्ध बातें मेरे दिल और दिमाग में नहीं No आएगी uncleanness can come to this heart. और ये जो अशुद्ध बातें मेरे दिल में नहीं आएगी। This little light of mine is given to Jesus. Let it shine, let it shine, let it और shine. ये जिंदगी जो खुदा ने मुझे दिया है वो और प्रकाश दे, ज्योति दे। Let me close my words. वचन को मैं रोकना चाहूंगा। This man was bound and conditioned by leprosy. और ये आदमी जो है कोड़े से भरा हुआ आदमी था He was controlled by leprosy for a long time. और कई सारे सालों से वो कोड़े से भरा हुआ और जकड़ा हुआ आदमी Here था। comes the word of liberation. लेकिन यहाँ पर वचन हम सुनते हैं He said, I am willing और मैं चाहता हूँ and be cleansed. आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओ। Bible says in verse number 13, और 13वें में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, immediately और तुरंत the leprosy left him. और कोड़े की बीमारी उसे छोड़कर चली गई। Today some leprosy is going to leave some people. मैं विश्वास करता हूँ कि आज कुछ कोड़े से भरे हुए लोग यहाँ से उनको छुटकारा Because मिलेगी। God's word will not come back void. वचन कभी वापस खाली नहीं आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of the Lord. खुदा की महिमा करो। And there was another gentleman, he testified last एक hearing. भाई ने इस प्रकार गवाही दी, As the prayer was going on here, जो है प्रार्थना चल रही थी, somebody sitting a little bit distant from us. हमसे कुछ दूर एक आदमी बैठा था This person could feel the touch of God on his body. और खुदा का जो है छूना उसने अपने शरीर पर महसूस किया। At the end of the service, he came back and privately confessed to me. और जो आखिर में उसने जो है पास्टर से आकर बात की, Something happened to me in my childhood. और बचपन में मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात घटी थी। Every time I hear this word and that word from the word of God, जब वचन से ये बातें और वो बातें मैं जब सुनता हूँ there's something going from head to toe. और जो है सर से नीचे तक मेरे जो है कोई चीज में गुजरते हुए मैं देखता हूँ That will have to go in Jesus' name. और वो बातें जो यीशु मसीह से नाम से बाहर निकलना पड़ेगा। Oppression can come and sin can come due to other people's actions as well. और जो है बीमारियां या बंदगी ऐसी सारी बातें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, And there is a deliverer in our house today. लेकिन हमारे परिवार में, हमारे घर में तो छुटकारा दिलाने वाला खुदा है। Greatest news today is this. बहुत अच्छा खबर आपके लिए ये है। I'm so thankful for our brothers who came and really led our worship in a wonderful way. और जो है हमारी अगुवाई की, जो आराधना में अगुवाई की भाइयों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Thank God for the families who brought the flowers today. और उन परिवारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो फ्लावर्स आगे ले आए। And thank God for our media team, unnoticed but they are doing a wonderful job. और हमारी मीडिया टीम को जरा ध्यान दे, बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। And thank God for every one of you. और हर एक भाई बहनों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। My thanks goes beyond that. लेकिन मेरी जो स्तुति और भी आगे जाती है। Thank God the deliverer is here today. मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि छुटकारा दिलाने वाला खुदा हमारे बीच में है। Anointed, flooded by the Holy Spirit. आशीष से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, Empowered by the Holy Spirit. आत्मा से भरपूरी से भरा हुआ, Infilled by the Holy Spirit. अंदर पूरी तरह भरा हुआ। Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम की महिमा। What a name we have in Jesus. कैसा महान नाम है हमारे बीच में। There is deliverance in the Word of God. यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें छुटकारा है। Receive it, उसे स्वीकार कर लो, act upon it, उस पर काम उसके अनुसार you चलो will be set free today. और उसके द्वारा आपको जो है छुटकारा मिलेगा। Those who are listening to us through the television, जो हमें जो है टेलीविजन के द्वारा सुन रहे हैं, you can receive the deliverance today. आज आपको वो छुटकारा मिल सकता No है। matter what you're going through today, आप आपकी जिंदगी में आज के दिन में आपसे क्या क्या चीज आपकी गुजर रहे हैं, invite Jesus in your heart, in your life, यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार कर लो, and make Him your Lord and your Savior. वो अपना स्वामी, अपने उसके स्वामी बना लो And He will flush out every demonic things from your life. और आपकी जिंदगी से हर एक गंदी बातें वो निकाल दे।